شاہد اختر ایک ایسا نام ہے جو اردو ادب کی دنیا میں اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے۔ ان کی ادبی خدمات میں نہ صرف افسانہ نگاری شامل ہے بلکہ انہوں نے اردو کے ادبی حلقوں میں بطور ناول نگار بھی اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ شاہد اختر کی تحریریں جذبات، سماجی مسائل اور انسانی رویوں کو گہرائی سے بیان کرتی ہیں۔ آپ نے زندگی کے نشیب و فراز اور انسانی تجربات کو اپنی کہانیوں میں بڑی گہرائی کے ساتھ پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ادبی حلقوں میں داد و تحسین حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ 20 جولائی 1966 کو کانپور میں پیدا ہونے والے شاہد اختر نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر سے حاصل کی۔ شاہد اختر کا تعلق ایک بڑے خاندان سے ہے جو مذہبی اعتبار سے مختلف نظریات رکھتا تھا۔ ان کی پیدائش اور پرورش ایک ایسے علاقے میں ہوئی جہاں مختلف سماجی اور ثقافتی اثرات موجود تھے۔ ان کے والد کے 11 بھائی تھے اور وہ اپنے چچا زاد بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ شاہد اختر کی ابتدائی زندگی میں مذہبی تعلیمات کا گہرا اثر تھا۔ ان کے نانیحال اور دادیحال میں مختلف مذہبی عقائد کی وجہ سے ان کی شخصیت پر ایک منفرد اثر پڑا۔ والد کے 11 بھائیوں میں ان کے والد کی شادی پہلے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے چچا زاد بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ان پر ایک بڑے بھائی کی ذمہ داری بھی عائد ہوئی۔ شاہد اختر کا ادبی سفر ان کے ابتدائی تجربات سے بہت متاثر ہوا ہے۔ آپ نے اپنے افسانوں میں نہ صرف اپنے ارد گرد کے سماج اور لوگوں کو بڑی حساسیت سے پیش کیا بلکہ بین الاقوامی موضوعات پر بھی شاہکار افسانے لکھے ہیں۔ ان کے افسانے عالمی، سماجی، ثقافتی اور مذہبی موضوعات پر مبنی ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مدرسے میں حاصل کی۔ اس دور میں گھر چھوٹے اور کنبے بڑے ہوتے تھے، جوائنٹ فیملی کا تصور عام تھا اور آرام و آشائش کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ چچاؤں کی شادی اور بڑے بھائیوں کی ہجرتوں کے باعث گھر تنگ ہونے لگا۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے شاہد اختر صاحب کے والد نے ایک نئی کالونی جوہی میں ایک مکان خریدا اور پورا خاندان وہاں منتقل ہو گیا۔ شاہد اختر اس وقت 7 یا 8 سال کے تھے۔ یہاں آ کر شاہد اختر نے اسکول کی تعلیم شروع کی۔ انہوں نے ابتدا میں ایک پرائمری اسکول میں پڑھائی کی اور پھر سیکنڈری تعلیم کے لیے شواس انٹر کالج میں داخلہ لیا۔ اس کالج کے پرنسپل رام لکھن بھٹ بہت سخت گیر اور ڈسپلین کے پابند تھے۔ شاہد اختر نے ان کے تحت انٹر کی تعلیم حاصل کی۔ اردو زبان و ادب سے ان کا گہرا لگاؤ انہیں اس طرف کھینچ لایا اور آپ نے اردو میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے SGST میں ملازمت اختیار کر لی، لیکن ان کا دل ہمیشہ ادب کی دنیا میں ہی رہا۔ شاہد اختر کا ادبی سفر ایک ایسے گھر سے شروع ہوا جہاں پڑھنے کا شوق ایک عام سی بات تھی۔ بچپن سے ہی انہوں نے مختلف رسائل و جرائد پڑھنا شروع کیے اور ان کا یہ شوق وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے بچپن میں پڑھی ہوئی کہانیوں اور افسانوں نے ان کے اندر ایک تخلیقی شعلہ روشن کیا، جس نے بعد میں انہیں ایک کامیاب افسانہ نگار بنایا۔ شاہد اختر کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت سی فلمیں دیکھی ہیں اور ان فلموں نے ان کے ذہن پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ انہوں نے فلموں کی خوبیوں اور خامیوں کا تجزیہ کرنا شروع کیا اور اسی تجزیے کے نتیجے میں ان کے اندر ایک تنقیدی رویہ پیدا ہوا۔ یہی تنقیدی رویہ بعد میں ان کی تحریروں میں بھی نظر آتا ہے۔ شاہد اختر نے اپنی ابتدائی تحریریں ہندی زبان میں لکھی۔ انہوں نے شاعری اور افسانے دونوں لکھے۔ ان کی تحریریں مقامی اخبارات میں شائع ہوتی رہیں۔ بعد میں انہوں نے اردو زبان کی طرف رجوع کیا اور اردو زبان میں بھی کامیاب افسانے لکھے۔ اسی دوران آپ نے اپنے ایک دوست کے ساتھ ممبئی کا سفر کیا۔ یہ سفر ان کے لیے ایک زندگی بدل دینے والا تجربہ ثابت ہوا۔ ممبئی کی چکا چوند فلم انڈسٹری کی رونق
और उसके अंदर छुपी कड़वी सच्चाइयां सबने मिलकर उनके अंदर एक नए नावल निगार को जन्म दिया। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो कुछ देखा, सुना और महसूस किया, उसने उनके जहन में गहरे नक्श छोड़े और उन्हें लिखने पर मजबूर किया। शाहिद अख्तर के मुताबिक वो हमेशा से लिखने के शौकीन थे, लेकिन उन्हें कभी ये एहसास नहीं हुआ था कि वो एक नावल निगार बन सकते हैं। मुंबई के सफ़र ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि उनके अंदर एक कहानी गो की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लड़कियों के साथ होने वाले इस्तेहसाल, फिल्मी दुनिया के अंदरूनी हालात और दीगर कई अहम मौज़ूआत पर लिखा। शाहिद अख्तर की तहरीरों की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वो हकीकत पसंदाना है। उन्होंने जो कुछ देखा है उसे बड़ी सादगी और बेबाकी से लिखा है। उनकी तहरीरें ना सिर्फ दिलचस्प बल्कि फ़िक्र अंगेज़ भी हैं। वो समाजी बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। मुंबई में गुजारे गए वक्त ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वो फिल्मी दुनिया के लिए नहीं बने हैं। उन्होंने महसूस किया कि उनकी रूह इस तेज़ रफ्तार और मुकाबले की दुनिया में नहीं जमेगी। इसलिए उन्होंने इस फैसले को कबूल किया कि वो वापस अपने घर लौट जाएं। शाहिद अख्तर ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1992 में अफसाना निगारी से किया। उनका पहला अफसाना शायर बम्बई में शाये हुआ। इसके बाद उन्होंने कई दहाइयों तक उर्दू और हिंदी के मोतबर जराइद में अपने अफसाने शाये किए। शाहिद अख्तर का लिखने का सफ़र कानपुर से शुरू हुआ। यहाँ उन्होंने अपनी इब्तिदाई तहरीरें लिखीं और उन्हें नावल की शक्ल दी। शोएब निज़ाम शाहिद अख्तर के लिए एक मुअल्लिम साबित हुए। उन्होंने शाहिद अख्तर को ना सिर्फ लिखने के बारे में बताया बल्कि उन्हें ये भी बताया कि क्या लिखना है और क्या नहीं। शाहिद अख्तर के लिए पढ़ना एक मुसलसल अमल रहा है। आपने प्रेमचंद, मंटू और इंतज़ार हुसैन, बेदी, कुरतुल ऐन हैदर, गुलाम अब्बास, ज़मीरुद्दीन अहमद, हसन मंज़र, नैयर मसूद जैसे अहम अदीबों को पढ़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा। उनका मानना है कि पढ़ने का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता और ये लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मुंबई में शाहिद अख्तर का अदबी सफ़र एक नई मंजिल पर पहुंचा। उन्होंने यहाँ बहुत से अहम अदीबों से मुलाकात की और उनकी तहरीरें शाये हुई। महमूद हाशमी जैसे नामवर और बड़े नाकिद ने पहले मजमूए पर मुकदमा लिखा जो उनके लिए एक बड़ा एजाज़ था। शाहिद अख्तर की कहानी टकला नवाब उनकी एक बहुत मशहूर कहानी है। ये कहानी हम जिनसियत पर मबनी है और उस वक्त के लिए बहुत ही बोल्ड मौजू था। इस कहानी ने शाहिद अख्तर को अदबी दुनिया में एक शनाख्त दिलाई। इब्तिदाई दिनों में उन्होंने बहुत सारी तनकीद का सामना किया। लोगों ने उनके अफसानों को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा और उन पर तनकीद हुई, लेकिन शाहिद अख्तर उन तमाम तनकीदों से बेनियाज रहे और अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ रखी। शाहिद अख्तर की आज़ाद ख़याली ने उनके अफसानों को एक मुनफरिद पहचान दी है। वो किसी भी मौजू पर खुल कर लिखते हैं और अपने ख़यालात को बेबाकी से पेश करते हैं। उनकी तहरीरों में एक ताकत है जो पढ़ने वाले को मुतासिर किए बगैर नहीं गुजरती। शाहिद अख्तर के अफसाने सिर्फ तफरीह के लिए नहीं बल्कि समाजी मसाइल पर भी रोशनी डालते हैं। वो अपने अफसानों के ज़रिए माशरे में मौजूद मुख्तलिफ मसाइल पर सवाल उठाते हैं और लोगों को उन मसाइल के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। उनकी तहरीरों को क़ारीन ने बहुत पसंद किया और उन्हें अदबी हलकों में पज़ीराई मिली। शाहिद अख्तर का पहला अफसानी मजमुआ बर्फ़ पर नंगे पाँव 2001 में शाये हुआ, जिसने उनके अदबी सफ़र की कामयाब शुरुआत की। इसके बाद 8 साल बाद उनका दूसरा मजमुआ मोंटी मंजर आम पर आया और 11 बरस बाद ख्वाब गीने शाये हुआ।
इस अरसे में उन्होंने एक नावल शहर में समंदर भी लिखा, जो उनकी तख्लीकी सफ़र का अहम संगमील साबित हुआ। शाहिद अख्तर की कहानियों में समाजी मुशाहिदा और हकीकत पसंदी का पहलू नुमाया है। उनके किरदार उमूमन आम जिंदगी के तजुर्बात और हालात की अक्कासी करते हैं, जिनमें इस्तेहसाल, नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ लड़ाई को बखूबी बयान किया गया है। उनके अफसानों का कैनवस वो दुनिया है जो हमारे आसपास मौजूद है, और उसमें दिखाए जाने वाले किरदारों की कहानियाँ दिल को छूने वाली और हकीकत पर मबनी होती है। शाहिद अख्तर ने अपने अफसानों और नावलों में हिंदुस्तान की तहजीब और उसके रवायती मसाइल को मरकज़ बनाया है। उनकी तख्लीक़ात में इंसान के बातनी तज़ादात और समाज के तल्ख़ हक़ायक़ को बड़ी खूबसूरती से उजागर किया गया है। उनकी तख्लीक़ात में इंसानी नफ्सियात और समाजी रवैयों की उम्दा अक्कासी होती है। उनके अहम नावल्स में शहर में समंदर और शहरज़ाद शामिल हैं, जिन्हें क़ारीन ने बहुत सराहा है। शाहिद अख्तर ने अब तक तकरीबन 100 अफसाने और 2 नावल लिखे हैं। उनकी कुछ मशहूर तसनीफ़ात में बर्फ़ पर नंगे पाँव अफसाने 2011, शहर में समंदर नावल 2005, मोंटी अफसाने 2008, पाप गिने अफसाने 2017, बर्फ़ पर नंगे पाँव देवनागरी में 2019, शहरज़ाद नावल 2022, शहर में समंदर तीसरा एडिशन 2023 शामिल है। उनकी किताबें रेख्ता पर भी दस्तयाब हैं, जो कि एक मारूफ ऑनलाइन अदबी प्लेटफॉर्म है। शाहिद अख्तर की अदबी खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें मुख्तलिफ अदबी इदारों से इनामात व एजाज़ात से नवाजा गया है। उन्हें इनामात भारतीय भाषा परिषद कोलकाता की जानिब से 2006 में एक इनाम बदस्त गुलजार और गिरजा देवी नवाजा गया। मोंटी उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की जानिब से 2009 में और ख्वाब गिने उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी 2017 में उनकी किताबों पर इनामात मिल चुके हैं। शाहिद अख्तर की तहरीरें अपने बयानिया, इस्तिआरा, अलामत निगारी और मुनफरिद अंदाज के लिए मशहूर हैं। वो ज़िंदगी के मामूली से मामूली वाक़यात को भी इतनी खूबसूरती से बयान करते हैं कि कारी उनमें खुद को खोज लेता है। उनके अफसानों में समाजी मसाइल, इंसानी रिश्ते और नफ्सियाती गहराइयों को बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया है। उनके नावलों में भी यही खुसूसियात नुमायां तौर पर नज़र आती हैं। शाहिद अख्तर का अदबी सफ़र अभी तक जारी है। वो एक और नावल पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये नावल भी क़ारीन को बहुत पसंद आएगा।